خوش آمدید جی آیا نو بخیر آگلے بھلی کرے آیا. یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ گلاب جامن. فنی دو والد صاحب ایسے نہیں وہ انیشیٹو لیتے تو بہتر انیشیٹو ہوتا. گورنمنٹ کی طرف سے یہ سپورٹ ہونی چاہیے پراپر کھلاڑیوں کو. سپورٹ نہیں ہو رہا. مستقبل میں کون سی فائٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ورلڈ رینکنگ میں میں نمبر 1 رہا ہوں. السلام علیکم خوش آمدید جی آیا نو بخیر آگلے بھلی کرے آیا. وشت کے دنیا بول ہے کے ساتھ میں ہوں سونیا سندس اور میں ہوں سید فیصل کریم. امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن کا آغاز بہت اچھا ہوا ہوگا, اور اگر نہیں ہوا تو اب ہم آپ کے دن کا آغاز بہت اچھا کرنے جا رہے ہیں. سونیا بڑے انٹرنیشنل دن ہوتے ہیں نا, آج بڑا ایک خاص دن ہے. اچھا بتائیے کون سا دن ہے؟ آپ گیس کریں کون سا دن ہوگا. ورلڈ مینٹل ڈے. وہ بھی ہے, ڈینٹل ڈے وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مینٹل ڈینٹل ایک طرف. آج ہے بہت ہی خاص دن اور وہ ہے گلاب جامن کا عالمی دن. ریئلی؟ یس, یہ بھی ایک دن, یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ گلاب جامن. سو فنی دو لیکن it doesn't sound funny, it sounds tasty. ہاں ہاں, کیونکہ وہ دنیا کے حسین ترین مناظر ایک طرف اور شیرے میں ڈوبا ہوا گلاب جامن نکلتا ہوا, گرم گرم دھوئیں نکلتا ہوا, اس پہ ہلکی سی بادام کی گارنش ایک طرف. اس سے بہتر ساؤنڈ کر رہے ہیں آج آپ مجھے, ہے نا. تھینک یو فار دیٹ. لیکن جناب علی, ہمارا کہنے کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ بس آپ گلاب جامن کھائے جائیں. دیکھیں, سیکھیں گلاب جامن سے. کیا سیکھیں؟ آپ نے کیا, میں نے تو یہ سیکھا کہ جتنا میٹھا گلاب جامن ہوتا ہے اپنی شخصیت کو بھی اتنا ذرا میٹھا کر لیں, تاکہ یہ جو دنیا بھر کی کڑواہٹ ہے اس کو آپ کم کر سکیں. مطلب کہ ہم گلاب جامن کی طرح نرم لہجہ اختیار کریں, نرم طبیعت اختیار کریں اور مٹھاس رکھیں اپنے لہجے. اور یہ پتہ کب ہوگا؟ جب آپ 1 کلو منگوائیں گی نا, آپ کا 1 مہینہ پورا ہونے پہ یہاں پہ پوری ٹیم کے لیے, تو یہ ہوگا. ہاں, کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے بھائی, آپ کھائیں, اعتدال میں کھائیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے کھائیں. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو خدا کا واسطہ بالکل نہ کھائیں, اس کی عادتیں اپنا لیں. اسی کے ساتھ چلتے ہیں بڑی خبر کی جانب. میاں صاحب اور صدر زرداری سے ملاقاتیں کر گئی کام. آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے رام ہونے کی خبریں عام. پی ٹی آئی والے پھر سے مولانا سے ملنے جا پہنچے, لیکن اس بار حکومت ہے پر اعتماد. بلاول بھٹو زرداری کا آئینی ترمیم پر JUI کی مکمل حمایت, ملنے کا دعویٰ. ملتان ٹیسٹ میں وکٹ سے متعلق بولرز کے قبرستان اور ملتان ہائی وے جیسے تبصروں کے باوجود انگلش ٹیم کا پلڑا بھاری. قومی ٹیم کے 556 رنز کے جواب میں 992 رنز بنا لیے. جو روٹ ڈبل سینچری کے قریب میچ کا نتیجہ قومی ٹیم کے حق میں ہوتا نظر نہیں آ رہا. سرمایہ کاروں کے ہفتے کے دوران پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی. 100 انڈیکس 86,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا. انویسٹمنٹ کا بہترین موقع ہے, لیکن درست انتخاب کیسے کیا جائے جانیں گے آج کے پروگرام میں. اور پاکستانی باکسر محمد وسیم کی ایک اور بڑی کامیابی. رنگ کے کنگ نے پروفیشنل رینکنگ فائٹ میں جارجیا کے حریف کو چت کر دیا. فخر پاکستان آج ہوں گے دنیا بول ہے میں ہمارے مہمان. ٹو اسٹارٹ آف دی تھنگس 900 نہیں 400 میں ایکسائٹڈ ہو گئی. یہ میرے خیال سے آپ نے پورے پاکستان نے جتنے بنانے ہیں نا پوری سیریز ٹوٹل بتا دیا میں نے, سوری بتا دیے ہیں. تو اس تہلکے جو ہم نے تہلکہ خیز آغاز کیا ہے, پاکستانی سیاست میں بھی بہت تہلکہ مچا ہوا ہے اور ایک بار پھر مزید ہلچل آنے کا امکان ہے. آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی کا سیشن ہونے جا رہا ہے. اب اس میں نئے قانونی مسودے کو پیش کیا جائے گا. گیند اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان کے کورٹ میں ہی ہے اور ان کی 8 نشستیں کل بھی گیم چینجر تھیں اور ابھی بھی وہی صورتحال برقرار ہے. پہلے 2 دن پہلے میاں محمد نواز شریف اور صدر زرداری سے ملاقات ہوئی اور گزشتہ روز PTI وفد ان سے ملنے جا پہنچے. اس سب پہ بات کر لیتے ہیں. رہنما مسلم لیگ نون شیخ روحیل اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وفد کا. اب جتنی بھی یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور مسودہ جو ہے اس کے بھی شیئر کیے جانے کی جو نکات ہے اس کے اطلاعات ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو مولانا صاحب کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ نہیں, میں بہت پہلے بھی کہہ چکا تھا. ابھی یہ اس وقت میں جو آپ نے بات کی ہے نا میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی, اس میں ایک شخص ابھی شخصیت کم ہے
अगर वो भी होते तो मेरे ख्याल में उसी वक्त हो जाता काम। और ये हो जाएगा ऑब्वियसली, अगर इसमें मुल्क की बेहतरी है या इस हो जाना चाहिए। इसमें कौन सी आना की वाली कौन सी बात है। और मौलाना साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं, बहुत अच्छे पाए के सोच रखते हैं, बड़ी जबरदस्त मुस्बत सोच रखते हैं। तो अल्टीमेटली वो देखेंगे जो फायदे की बात है वो जरूर कर देंगे। इस मसले में काम हो जाएगा बस। तो जहाँ तक आदत मिलने की, सियासी लोग मिलते रहते हैं आपस में। वैसे शेख साहब सब जानते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की 8 जो है सीटें नए कानून साजी या तो करवा सकती हैं या नहीं, लेकिन अगर हुकूमत की मर्जी की ही तब्दीलियां नहीं होती तो फिर फ़ायदा क्या? इस वक्त आप इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। और मेरे अपने ख्याल में ना इस वक्त हमें इस चीज़ को इतना ज़्यादा डीपली जाके डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये वक्त की बात है, जब सामने आएगी चीज़ तो आपको पता चल जाएगा। और मेरे ख्याल में हर वो चीज़ जो बेहतरी के होगी तो जमीयत वही काम करे। वैसे शेख साहब, जरदारी साहब को कहा जाता है मफाहमत का बादशाह, लेकिन क्या बात है इस बार वो भी मसला हल कराने में नाकाम नज़र आ रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नाकामी मेरी बात मुझे नहीं नजर आती कोई ऐसी। मुझे नहीं समझ आती कि जरदारी साहब ऐसे नहीं वो इनिशिएटिव लेते तो बेहतरी होगी तो इनिशिएटिव नहीं होगा। जी वैसे शेख साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत अब तब्दील हो चुकी है और सियासत वो 90 और 2000 के इश्रे से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है? नहीं, ये पिछले दिनों में माजरत के साथ कहूँगा ये कुछ सियासत में अच्छा नेशनून नहीं है। जो कुछ हो रहा था, जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे जलसों में और जुलूसों में, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी शाइस्ता लोगों को जेब देता है। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों से नुकसान पहुँच सकता है, आपके इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुँच सकता है, आप जब धुलाई आपकी हो सकती है। लोग क्या कहेंगे यार आपके लिए, इस किस्म की गुफ्तगू की जाए, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल की जाए। और बल्कि मैंने तो ये कहा था कि मेरी तरफ से मशवरा है, कोई जा कान में उसके कह दे कि भाई तुम एक वज़ीर आज़म हो, एक सूबे के सरबराह हो, तुम्हें ये जेब नहीं देता इस किस्म की गुफ्तगू। अपनी अपनी सोच है। मैं अच्छा, वैसे शेख साहब, ये मिसाक़ जमहूरियत हमें वर्चुअली तो नज़र आती है लेकिन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रही है? अगर कर रही है तो मौलाना साहब अब तक राज़ी नहीं हो रहे, ये हैरान कुन बात नहीं? तो ऐसा नहीं है, तौक़ुफ़ करें, हम इंतज़ार कर लें, थोड़ा देर सब्र कर लें। कुछ तफ़ज़ात होते हैं, हर किसी को होते हैं, सियासत में ये चलता रहता है। सियासी लोग ऐसी बात करते रहते हैं, कोई ना कोई तफ़्वुज़ होगा जो वो अपना दूर करना चाहते हैं। और जब आप उनको गारंटी या श्योरिटी दे दोगे तो वो भी शामिल हो जाएंगे हुकूमत में। मौलाना बड़े दरीना साथी हैं नवाज शरीफ साहब के, और जरदारी साहब की वो इज्जत करते हैं, वो भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हो जाएगा ये मामला, सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रोहिल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस तमाम तर मामले में बिलावल भुट्टो जरदारी की भी बड़ी गुफ्तगू सामने आई और उनको इस बात का यकीन है कि ये मामला हल होगा। और उन्होंने तो डेट भी दी है कि जी 25 तारीख तक जो है वो तरमीम हो जाएगी। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था कि शायद हुकूमत ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया इस तरमीम के लाने में, और दे शुड हैव डन मोर रिसर्च इनटू इट। बहुत हलचल चलती रही इसमें, मुसव्विदा है नहीं है, मुसव्विदा किसका सही है, नुकात किसके पास ठीक हैं। तो अब लेकिन हुकूमत पर उम्मीद है, एलाइज पर उम्मीद है, देखते आगे क्या होता है। सियासी गहमा गहमी अभी जारी और सारी रहेगी। Absolutely. तो फिर हम भी जारी और सारी रहते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। यस। और अब जरा हम बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की। फैल्कन के नाम से मशहूर पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान का नाम कर दिया है रोशन। उन्होंने माल्टा में होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के वेट, एक हैवी वेट उनकी कैटेगरी होती है, उसके अंदर रैंकिंग मुकाबले में जॉर्जिया के हरीफ को नॉकआउट किया है। और उनकी कामयाबी की कहानी उन्हीं के से सुनते हैं। सो मोहम्मद वसीम, प्रोफेशनल बॉक्सर, वेलकम टू द शो। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले तो हमें बताएं कि जो माल्टा में जो रैंकिंग मुकाबला हुआ है, सब उस पर तो भाई मुबारकबाद बनती है आपके लिए, और हमारे नाजरीन को फ़ाइट का अहवाल बताएं कि फ़ाइट में मुकाबला कैसा रहा, जीत के बाद क्या रहा, क्या फीलिंग्स थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ़ी अच्छा लगा और 2.5 साल के बाद मैंने कमबैक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए ख़ासकर, और बहुत खुशी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह
इसके बाद मैंने वर्ल्ड टाइटल के लिए फ़ाइट करनी है और फुल दिसंबर में, तो इंशाल्लाह आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि मैं उसमें भी इसी तरह कामयाब हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अच्छा वसीम, द थिंग इज़ कि हमने ये भी सुना कि जब माल्टा पहुँचने में आपको कई बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्या हुआ था ऐसा? नहीं, ये बिल्कुल सच है और काफ़ी मुश्किल रहा है इस बार इस फाइट के लिए मुझे, क्योंकि 2 महीने मैंने ना वीज़ा इश्यूज़ की वजह से मैंने कैंप नहीं कर सका। बेसिकली मेरा जो ट्रेनिंग कैंप है वो यहाँ यूके में होता है। पहले मैं स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग होती थी, मेरा प्रॉपर कैंप लगा होता था। तो अभी आजकल जो है लिवरपूल में, तो ये इस फाइट के लिए मैंने कोई कैंप नहीं किया, सिर्फ 1 वीक और 10 डेज़ मेरा लास्ट जो ट्रेनिंग कैंप हुआ है, क्योंकि मैं प्रॉपर टाइम पे पहुंच नहीं सका। और जो मेरी वर्ल्ड टाइटल फाइट थी WBAF की, वो भी मिस हुई बिकॉज ऑफ वीज़ा इश्यूज़। जो हमारी टीम है बॉक्सिंग, जो जिस प्रमोशन में मेरी साइंड हुई, तो उन्होंने ये कहा कि आप 2.5 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं, तो इसमें ये ख़तरनाक हो सकता है कि आप इतनी बड़ी फाइट के लिए जाएं विदाउट ट्रेनिंग कैंप। तो वो यही इशू था कि वीज़ा इश्यूज़ की वजह से प्रॉपर कैंप अटेंड नहीं कर पाए। जी, वैसे वसीम, आप खुद तो 25 साल से बॉक्सिंग के खेल से मुंसलिक हैं, तो वफाकी और सूबाई सतह पर बॉक्सिंग की जो खिलाड़ी हैं उन्हें कौन कौन सी सहूलियात दस्तयाब हैं? देखिए, डिफरेंट स्पोर्ट्स है और मैंने कभी मुझे वीज़ा इश्यूज़ नहीं हुआ। ये आई थिंक दूसरी दफ़ा है जो वीज़ा इशू हो रहा है इसमें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज़ आई थिंक कुछ हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट होनी चाहिए प्रॉपर खिलाड़ियों को, सपोर्ट नहीं हो रहा। और जो वीज़ा इश्यूज़ मेरे हिसाब के, मतलब मेरे तरह की जो इंटरनेशनल एथलीट्स है जिन्होंने कई बार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पर, उनके साथ ये वीज़ा इश्यूज़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ आप देखिए, मेरे 4 पासपोर्ट है, उस पर मेरा अमेरिका का, यूके का और साउथ कोरिया, जापान का, ये 3 से 4 वीज़े मेरे वैलिड थे। तब भी ये शेंजन वीज़ों में मुझे मसला हुआ है पहली दफ़ा। इससे पहले भी वीज़े लगे हैं, लेकिन आजकल जो एक नया मसला शुरू हुआ है कि आप अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको पहले अपॉइंटमेंट चाहिए होगा। उस अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको 2 से 3 महीने वेट करना होगा, और फिर उसके बाद आपका जब पासपोर्ट चला जाता है, फिर वो कोई 40 to 45 डेज़ उसमें लगते हैं कि आपको पासपोर्ट मिले। तो इस तरह जो मेरे हिसाब की जो एथलीट्स इंटरनेशनल, तो हमारा प्रॉपर कैंप नहीं हो सकता ना, इसके लिए तो फिर हमें 1 साल पहले अप्लाई करना होगा। सारे जितने भी कंट्रीज़ है, चाहे शेंजन हो, चाहे ये जो है क्या कहते हैं अमेरिका का हो या यूके का हो, तो हमें 1 साल पहले अप्लाई करना होता है। और बाकी वीज़ा आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का मिलता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ का, वो भी एक एंट्री होती है, मल्टीपल एंट्री नहीं होता। तो ये गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, जो प्रॉपर रियल स्पोर्ट्समैन है। मुझे पता है कि कुछ इस तरह के भी स्पोर्ट्समैन हैं जो एक ही बार जाके वापस नहीं आते, तो उसकी वजह से भी हमारी कंट्री का नाम ख़राब होता है। तो ये अच्छा वसीम, ये बताइए प्रोफेशनल करियर की जो है कुल 15 बाउट्स में से 13 में फतह अपने नाम कर चुके हैं, मुस्तकबिल में कौन सी फाइट की तैयारियां हो रही हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान का वाहिद बॉक्सर हूँ जो वर्ल्ड रैंकिंग में मैं नंबर 1 रहा हूँ। चारों जो दुनिया के सबसे बड़े बॉडीज है, जैसे ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसका दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।